In previous session, we seen population interaction and predation. I hope you all are understood very well. Today we will see competitions. Next, population interaction, that is competition. You all are aware about competition, right? हम स्कूल में पढ़ते होते हैं तब competition हमारे बीच में होती है स्टडी के रिलेटेड या फिर स्पोर्ट के रिलेटेड या फिर एनी को करिकुलर एक्टिविटी के बीच में, राइट? सो कंपटीशन के बारे में थोड़ा बहुत पता है आपको, बट इकोलॉजी में कैसे कंपटीशन होती है कि कौन से बेसिस पे कंपटीशन होती है, दैट वी विल सी इन दिस टॉपिक. When Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest in nature, he was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. It is generally believed that competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limited. यहाँ आपको दिया है कि competition कब होती है, वो आपको समझाया है कि जो competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limited. कि limited source available होता है तब competition होती है. But this is not entire true. कि ये entire true नहीं है. Some other factor also responsible for competition. Firstly, totally unrelated species could also compete for the same resources. कि हम फर्स्ट बात करें तो टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड ऑल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज. फॉर इंस्टेंट, इन सम शैडो साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लेमिंगो, आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि विजिटिंग फ्लेमिंगो एंड रेसिडेंटल फिश कम्पीट फॉर देयर कॉमन फूड दैट इज कॉल्ड जू प्लैंक्टन. कि इन द लेक कि फ्लेमिंगो और जो फिश है वो कॉमन फूड के लिए कंपटीशन करती है, दैट इज जू प्लैंक्टन्स, राइट? सेकेंडली, फर्स्ट आपको एग्जांपल दिया. सेकेंडली, रिसोर्स नीड नॉट बी लिमिटेड फॉर कंपटीशन टू अकर इन इंटरफियरेंस कंपटीशन. कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि रिसोर्सेस लिमिटेड ही होने चाहिए, right? The feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species. Means what? कि जो feeding efficiency है एक species की वो कभी कभी reduce हो जाती है. क्यों? क्योंकि दूसरी species का interfere होने से या फिर inhibition करने से वो feeding capacity कम हो जाती है. Even if resources, that is food and space, are abundant. Right? Even if resources, food and space are abundant. Therefore, competition is best defined as a process in which the fitness of one species, measured in terms of its R-intrinsic rate of increase, is significantly lower. कि competition कैसे define होती है? That is the process competition is best defined as a process in which fitness of one species is significantly lower in the presence of another species. That is called competition. Specially competition में क्या होता है, एक species को benefit भी नहीं होता, दूसरे species को भी benefit नहीं होता, दोनों को क्या होता है, loss होता है, indirectly या फिर directly. It is relatively easy to demonstrate in laboratory experiment as the Gauss and the other experimental ecology did. When resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate to the other species. Means what? कि जब resources limited होते हैं, resources limited होते हैं at that time, when resources are limited, competitively superior species will eventually eliminate other species, but evidence for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive. So strong and persuasive circumstantial evidence does exist, however, in some cases.
द एबिंग दूसरे एग्जाम्पल दिए हैं कि दूसरे एग्जाम्पल में कंपटीशन को आपको समझाया है। Abingdon territories in Galapagos Island become exist with a decade after gods were introduced on the island। कि आइलैंड पर गॉड्स आने से टेरिटोरियस एग्जिस्ट हो गया विदिन अ डिकेड। क्यों? अपेरियंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गॉड्स। कि गॉड्स की एफिशिएंसी, ब्राउजिंग एफिशिएंसी कैसी थी? अच्छी सी। दैट इज वाई टेरिटोरियस डिसअपियर हो गया, एक्सिस्ट हो गया। अनदर एविडेंस फॉर कंपटीशन, राइट, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। The occurrence of competition in nature comes from what is called competitive release. Competitive release means what? A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a comparatively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed, right? कि कंपटीशन होने की वजह से कोई स्पीसीज प्रेजेंट होती है और उसके इकोलॉजिकल एरिया में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब जो ड्रामेटिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया होता है वो उसमें कंपटीशन होती है। दैट यू कैन सी एक्सपेरिमेंटली। Canal's elegant field experiment showed that on the rocky sea coast of Scotland, the larger and competitive superior Barcanal balanus dominates its interdial area and excludes the smaller Barcanal Cathalamus from that zone। यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया है, Collins elegant field experiment show on rocky sea coast of the Scotland, larger and competitively superior Barcanal balanus dominates in interdial area and exclude the smaller barcanals from that zone। कि जो larger barcanals थे, one kind of animal, वो उन्होंने smaller barcanal को रिलीज कर दिया, राइट, उसकी स्पीसीज को कम कर दिया कंपटीशन करके। दूसरा, इन जनरल herbivores and plants also appear herbivores and plants also appear to be adversely affected by competition than carnivores, right? वो भी अच्छे से अफेक्ट होते हैं। Then next, Gauss competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist independently and competitively interfere, one will be eliminated eventually। कि गॉस ने क्या बताया कि जो सेम रिसोर्सेज के लिए जो कंपटीशन करती है दो डिफरेंट स्पीसीज, वो इन्फिनेटली मीन्स के बहुत सालों तक, बहुत समय तक वो साथ में नहीं रह सकती, इवन कोएक्सिस्ट भी नहीं कर सकती। स्पेशली क्या होता है, जो कंपटीशन करती है उसमें जो लो इन्फीरियर होती है स्पीसीज, वो एग्जिस्ट हो जाती है। बट कब? जब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर limited but not otherwise। More recent study do not support such gross generalization about competition, while they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature. They point out that species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than inclusions। One such mechanism is resource partitioning। ये आपको अच्छे से याद रखना है। व्हाट इज रिसोर्स? वन सच मैकेनिज्म, रिसोर्स पार्टीशनिंग मीन्स कि जो भी रिसोर्सेज आपको अवेलेबल है वो उसका पार्टीशन होना चाहिए। इफ
Two species compete for the same resources. They could avoid competition by choosing, for instance, different time of feeding or different foraging pattern. Means what कि resource partitioning means what कि resource same available है, same species के लिए same resources है, but जो यूज़ करने का जो टाइमिंग है वो डिफरेंट होना चाहिए, या फिर फीडिंग का जो टाइमिंग है वो डिफरेंट होना चाहिए, फिर फीडिंग की जो पैटर्न है फॉरिंग पैटर्न वो डिफरेंट होनी चाहिए, जो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स पार्टीशनिंग. मैकआर्थर showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree कि मैकआर्थर ने ऐसा शो किया कि जो वर्बियर थी, कौन थे वर्बलर, मीन्स के जो ट्री पे जो भी मॉथ रहते हैं दैट इज कॉल्ड वर्बियर ऑन सेम ट्री वेर एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन. क्यों एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन थी? बिकॉज दे स्टे टूगेदर को एग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियर डिफरेंस इन देयर फॉरेइंग एक्टिविटी. उसका जो बिहेवियर होता है coexist due to behavior difference in their foreign activity कि जो उनकी फॉरेन एक्टिविटी थी, उनकी जो सीड खाने की या फिर न्यूट्रिशन ट्रीज में से न्यूट्रिशन लेने की जो कैपेसिटी थी वो डिफरेंट थी, उसकी जो पैटर्न थी वो डिफरेंट थी. दैट इज़ वाई दे स्टे टूगेदर एंड दे एबल टू अवॉइड कंपटीशन, राइट. सो ये हो गया कंपटीशन के बारे में. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं पैरासिटिज्म, राइट. यू ऑल आर अवेयर अबाउट पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म के बारे में आप सबको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा. देर आर 2 types of parasites in parasitism, एंडोपैरासाइट्स एंड एक्सोपैरासाइट्स. दूसरे भी पैरासाइट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड टेम्पररी पैरासाइट्स और टेम्पररी पैरासिटिज्म एंड परमानेंटली पैरासिटिज्म, राइट. सो हम देखते हैं पैरासिटिज्म के टाइप्स. पैरासिटिज्म मीन्स वॉट कि खाने के लिए या फिर कोई भी रिसोर्सेज के लिए हम दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म, राइट. यहाँ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पैरासिटिज्म. देर आर 4 types. First is endoparasites. Second is exoparasites. Third is temporary parasites, and last one is permanent parasites, right. Let us explain. Endoparasites means what? That live inside the host body. जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट बॉडी के अंदर स्टे करते हैं, राइट. लाइक लिवर फ्लूक्स, एक्सकेरीज, ओके, इकोलाई, लाइक बैक्टीरिया, माइक्रोब्स. Then what about exoparasites? Exoparasites
or we can say ectoparasites, that is stay or stick on human body, right? For example, human की बात करें तो lies on humans and ticks on dogs. देन टेम्पररी पैरासाइट्स मीन्स व्हाट कि ये जो पैरासाइट्स है वो अपनी पूरी लाइफ का एक स्टेज जो वन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल दैट फंक्शन एज ए पैरासाइट्स मीन्स कि ऐसे पैरासिटिज्म वो जो लाइफ का स्टेज होगा वो स्टे करेंगे, दैट इज कॉल्ड टेम्पररी पैरासाइट्स. एंड परमानेंट पैरासाइट्स मीन्स व्हाट कि वो परमानेंटली पैरासिटिज्म ही एज ए पैरासाइट्स ही वो लाइफ होंगे, दैट इज कॉल्ड परमानेंट पैरासाइट्स. ये दो आपको नहीं दिए हैं बट आपको याद रखने. कौन से दो? टेम्पररी एंड परमानेंट. लेट अस सी फ्रॉम योर बुक. Considering that the parasitic mode of the life ensures free logging and meals, it is not surprisingly that parasitism has evolved in so many taxonomic groups from plants to higher vertebrates. Parasitism plants से higher vertebrate तक होता है. Many parasites have evolved to be host specific in such a way that both host and parasite tend to co-evolve. मीन्स क्या कि दे कैन पैरासाइट्स ओनली अ सिंगल स्पीसीज ऑफ होस्ट, कि सम पैरासाइट्स होस्ट स्पेसिफिक होते हैं कि पर्टिकुलरली होस्ट में ही वो स्टे करेंगे, दैट इज कॉल्ड होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट्स, राइट. दे कैन नॉट चेंज देयर होस्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ. If the host evolves special mechanism for rejecting or resisting the parasite has to evolve mechanism to counteract and neutralize them. मीन्स व्हाट कि कभी कभी होस्ट ऐसे मैकेनिज्म क्रिएट करता है कि पैरासाइट्स को रिजेक्ट करता है, रेजिस्ट करता है. तो पैरासाइट्स क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट की मैकेनिज्म इवॉल्व करते हैं और उसके साथ काउंटरएक्ट करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं होस्ट को, राइट. इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीसीज, कि सेम होस्ट में सक्सेस मिले इसलिए या फिर सेम होस्ट में रहने के लिए ही मैकेनिज्म पैरासाइट्स क्रिएट करते हैं. इन अकरेंस विद देयर लाइफस्टाइल पैरासाइट्स इवॉल्व स्पेशल एडेप्टेशन, कि कभी कभी पैरासाइट्स स्पेशल एडेप्टेशन क्रिएट करता है, राइट. स्पेशल एडेप्टेशन such as loss of unnecessary sense organ, presence of adhesive organ और शकर्स, जिससे वो पैरासाइट्स के साथ मीन्स के होस्ट बॉडी के साथ वो स्टिक हो सके अच्छे से. क्लाइंग ऑन द होस्ट, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये सब जो सिम्टम्स होते हैं, ये सब कैरेक्टर होते हैं वो शो होने लगते हैं, राइट. स्पेशल एडेप्टेशन में द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर टू फैसिलिटेट पैरासाइटेशन ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट. मीन्स व्हाट कि कभी कभी पैरासाइट्स में दो होस्ट इंटरमीडिएट होते हैं जिससे उसका पूरा लाइफ साइकिल रन होता है. फॉर एग्जांपल हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया में दो होस्ट होते हैं, ह्यूमन होस्ट एंड मस्कीटो होस्ट, राइट. दूसरा यहाँ दिया है ह्यूमन लिवर फ्लूइड, होस्ट की बात की है जिसमें आपको दूसरा एग्जांपल दिया है. द ह्यूमन लिवर फ्लूइड्स मीन्स के ट्रिमेटोड पैरासाइट्स डिपेंड ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट, one is snail and second is fish to complete its life cycle. कि ह्यूमन लिवर फ्लूइड्स है वो एक पैरासाइट्स है, उसके दो होस्ट हैं स्नेल एंड फिश फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल. अनदर एग्जाम्पल दैट इज मलेरियर पैरासाइट्स also need two host, human host and mosquito vector to spread to the host, right. So also they require mosquito.
So majority of the parasites harm the host. मोस्टली पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, दूसरी स्पीसीज को हार्मफुल होता है, राइट. बट मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स हार्म द होस्ट. दे may reduce the survival, growth and reproduction of host and reduce its population density. कि population density वो host की कम करता है. They might render the host more vulnerable to predation by making it physically weak. वो क्या करता है, host को physically weak कर देता है. और do you believe that an ideal parasite should be able to thrive within the host without harming it? कि ऐसा कोई पैरासाइट्स है जो होस्ट को हार्म नहीं करता है, राइट. यस, वी नो इट, दैट इज E. coli microbes which are stay in our intestine, which do not harm to us, and that you will study in chapter number 10 in detail. Okay, next let us talk about ectoparasites and endoparasites. Parasites that feed on external surface of the host organism. अगर parasites एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म पे स्टे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स. एंड उसके फेमिलियर एग्जाम्पल आपको दिए हैं, लाइस ऑन द ह्यूमन एंड टिक्स ऑन डॉग्स, राइट. मेनी मराइन फिश आर इन्फेस्टेड विथ एक्टोपैरासाइट कॉपेपॉड्स. दूसरा भी एग्जाम्पल आपको दिया है, अनदर एग्जाम्पल, फिश आर इन्फेस्टेड विथ एक्टोपैरासाइट कॉपेपॉड्स, राइट. दूसरा अनदर एग्जाम्पल आपको दिया है, क्यूस्कुटा, दैट इज टोटली पैरासाइटिक प्लांट दैट इट कॉमनली फाउंड इन ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट, हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लिव्स ड्यूरिंग इवोल्यूशन. कि क्यूस्कुटा जो है वो इवोल्यूशन में उसके क्लोरोफिल और लिव्स उसने लॉस्ट कर दिए, इसीलिए वो हेज प्लांट होते हैं उसके अंदर ग्रो होती है, राइट. एंड दैट इज वाई दिस प्लांट नोन एज पैरासाइटिक प्लांट. इट ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इज पैरासाइट्स. द फीमेल ऑल्सो, दूसरा एक एग्जाम्पल दिया है, द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर एज अ पैरासाइट बट ऑल्दो इट नीड अवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन. कि यहाँ फीमेल मॉस्किटो जो है वो पैरासाइट्स नहीं है, एज ए पैरासाइट्स हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बट कभी कभी उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है. दैट इज़ वाई ऑल्सो दैट एक्ट एज ऑल्सो पैरासाइट्स, राइट. सो ये हो गए एक्टोपैरासाइट्स के बारे में. इन कॉन्ट्रास्ट एंडोपैरासाइट्स. In contrast, endoparasites are those live inside the body host at different sites. कि जो बॉडी में अलग अलग साइट्स पे रहते हैं पैरासाइट, दैट इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स. फॉर एग्जांपल लीवर, किडनी, लंग्स, ब्लड सेल्स, राइट, एक्सेट्रा. एंड द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर more complex because their extreme specialization, their morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. कि कभी कभी उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल जो फीचर्स होते हैं वो सिंपल हो जाते हैं, राइट. क्यों वो सिंपल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है वो बढ़ जाता है, राइट. Let us talk about another most important point, that is broad parasitism in bird. Broad parasitism in bird. Especially you can see in spring to summer season, breeding season of crow. Broad parasitism in bird is a fascinating example of parasitism in which parasitic birds lay its egg in the nest of its host. कि पैरासिटिक बर्ड होता है उसका एग कहाँ रख के आता है? वो होस्ट के नेस्ट में. एंड लेट द होस्ट इंक्यूबेट देम, कि होस्ट उसको सेव करता है, राइट. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग्स ऑफ द पैरासिटिक बर्ड हैव इवॉल्व टू रिसेंबल
the host egg in size and color to reduce the chance of the host bird detecting the foreign eggs and rejecting them from the nest. मीन्स व्हाट कि जब इवोल्यूशन हुआ तब जो पैरासिटिक बर्ड का एग्स था वो होस्ट के एग के साथ मिक्स हो गया. मीन्स के होस्ट के एग का जो साइज एंड कलर था वो एग्जैक्टली पैरासिटिक बर्ड का जो एग का साइज और कलर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया. क्यों? आपको एक एग्जांपल दूँ कि आपको किसी के घर 1-2 साल या 5-10 साल के लिए आपको रखा जाए तो आप कैसे हो जाओगे? उसके घर में जो भी डिसिप्लिन, जो भी रेगुलेशन होता है, रूल्स रेगुलेशन ऐसे फॉलो करोगे, राइट? तो कभी कभी क्या हो जाता है कि आपके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है जो इतना चेंज हो गया, राइट? तो सेम वे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि पैरासिटिक बर्ड कांट आइडेंटिफाई देयर एग्स इन द होस्ट नेस्ट and they can't eject from the nest because they can't detecting the foreign eggs, right? Try to follow the movement of cuckoo. आपको एक एग्जांपल दिया है कि ये आप बर्ड पैरासिटिज्म देखने के लिए आपको एक कुकू की मीन्स के कॉयल की मूवमेंट आपको देखनी है. क्रो इन योर नेबरहुड park during breeding season means कि spring to summer and watch the bird parasitism in action. कि आप बर्ड पैरासिटिज्म को आप अपनी आँख से देख सकते हो कि आपको स्प्रिंग से समर की जो सीज़न होती है उसमें आपको देखना होगा कि कुकू कौन सी मूवमेंट करती है. तो वो जो पैरासिटिज्म होता है दैट इज़ कॉल्ड बर्ड पैरासिटिज्म, राइट? सबको समझ में आया? पैरासिटिज्म बहुत लंबा है. आई होप यू ऑल आर वेरी अंडरस्टूड, राइट? इन नेक्स्ट सेशन एंड इन लास्ट सेशन हम देखेंगे कॉमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म. दैट बोथ इंटररिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट. Commensalism have one species have benefit and another species neutralize, and also mutualism one species, both species are beneficial, right? So that we will see in next session. Till that, thank you.